गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स अपने कंप्लीट कर लिए थे, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड्स वो हमने किया था, द डिफरेंस एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द कोवलेंट कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी है वो कोवलेंट कंपाउंड की ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आज हम अपने वीडियो में ले रहे हैं नेक्स्ट लेविस सिंबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is Lewis symbol? Lewis symbol is symbol of an element or compound surrounded by dots equal to valence electron. For example, सोडियम का अगर हम लेविस डॉट सिंबल बनाते हैं, लेविस सिंबल, और इट में भी आल्सो बी कॉल्ड लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल। नाउ sodium will have Lewis dot symbol Na1 dot because it has only one electron in its valence shell. Chlorine have 7 electron in valence shell, so chlorine surrounded by 7 dots. Magnesium have 2 valence electrons, so there will be 2 dots around the symbol of magnesium. So these are the Lewis symbol of elements. Symbol of element surrounded by the dots equal to their valence electron. Carbon have 4 electrons in their valence shell. Oxygen have 6 electron in their valence shell. इस तरह से इनके लेविस डॉट सिंबल बनाए जाते हैं. If we are talking about compounds like HCl, the Lewis dot symbol will be H. The 2 electron is shared. Now octet will be complete. Here HCl have complete octet, whereas hydrogen have complete duplet. So this is the Lewis symbol of HCl. This is Lewis symbol of HCl, which is also written as like this. The bond is represented by a single line. Single bond is represented by single line. Double bond है तो 2 parallel lines, triple है तो triple पैरेलल लाइंस. इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय डॉट्स. एनी अदर कार्बोनेट, दिस इज आवर कार्बोनेट आयन. नाउ इट्स स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. दिस इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर. नेगेटिव चार्ज, there will be 4 electron. This is the Lewis dot symbol of carbonate ion. या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डबल बॉन्ड है, you will give 4 electrons. सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस तरह भी सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन एंड 6 lone pair of electron on the oxygen atom. And these 2 electrons which have 6 lone pair of electron will acquire negative charge. So these are the Lewis dot symbol. Now how will you give a Lewis dot symbol? आपसे इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि इस कंपाउंड, किसी भी पार्टिकुलर कंपाउंड का लेविस डॉट सिंबल बनाइए. तो लेविस डॉट सिंबल बनाने में आप थोड़ा सा हम आपको आइडिया बता देते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन. जैसे इसमें कार्बोनेट में मैंने क्या किया, आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड पेयर में दिखाए हैं. 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द शेयर्ड पेयर. ये आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2. ये आपका शेयर्ड पेयर जो कि बॉन्ड बना रहा है 2. एंड दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो शेयर्ड पेयर. तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर में है. तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर में दिखाने हैं वो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं. एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ. शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू number of electron required to complete octet of each atom. octet या डुप्लेट भी हो सकता है. हर एक एटम का ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, minus the number of electrons available.
तो शेयर इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, और you can write it shared electron is equal to number of electron required minus electron available. You can write like this also. For example, अभी हमने बात की थी कार्बोनेट आयन की. Now in carbonate I have one carbon atom and 3 oxygen atoms. So carbon also required 8 electron to complete its octet. Oxygen also required 8 electron. This oxygen also required 8 electron, and this oxygen is also required 8 electron. Total I required 32 electrons to complete the octet of each atom. But I have electrons. I have carbon. There are 4 valence electrons in the carbon atom. In oxygen there are 6 valence electrons and there are 3 oxygen. Plus there are also 2 electrons extra due because of negative charge. 2 इलेक्ट्रॉन हमारे ये भी हो जाएंगे. अगर नेगेटिव चार्ज है तो जितना नेगेटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने, पॉजिटिव चार्ज है तो वो माइनस कर देने. ध्यान रखना एक चीज़. तो टोटल हमारे पास वी हैव 24 इलेक्ट्रॉन्स. सो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड. तो जब आप कार्बोनेट का लेविस सिंबल बनाएंगे तो उसमें दिस इज कार्बन एंड देयर आर 3 ऑक्सीजन एटम. ओनली 8 इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड. 2 4 6 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये हमारे 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी. अभी 2 इलेक्ट्रॉन और शेयर करने हैं. तो 2 इलेक्ट्रॉन और शेयर करने के लिए हम कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं. दिस इज डबल बॉन्ड. इनको बॉन्ड्स को मैं बॉन्ड की बजाय इलेक्ट्रॉन डॉट से भी दिखा सकता हूँ. 2 4 6 नाउ 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो कहीं पर भी किसी भी एक ऑक्सीजन के साथ मैं डबल बॉन्ड दिखा देता हूँ. नाउ ये हमारे हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स जो कि शेयर्ड हैं. अब बाकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनशेयर्ड होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे. बाकी बचे कितने? 24 इलेक्ट्रॉन थे, 8 हमने शेयर कर दिए. नाउ 16 इलेक्ट्रॉन्स आर मोर विच आई विल शो इन दिस स्ट्रक्चर. आउट ऑफ दिस 16, नाउ दिस ऑक्सीजन, लेट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑक्सीजन. दिस ऑक्सीजन इज गिवन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन स्टिल नाउ. अभी तक इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही दिए हैं, तो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन इसको और दिए जाएंगे. तो 2 2 4 और 2 6. अब इस ऑक्सीजन का जो हमारा ऑक्टेट है, ये इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है. 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड में और 6 इलेक्ट्रॉन में इसको लोन पेयर में दे दिए. तो ऑक्टेट कंप्लीट. टोटल 6 इलेक्ट्रॉन और गए. अब मेरे पास बच गए 10 इलेक्ट्रॉन. नाउ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, चलिए इसकी बात करते हैं. अब दिस इलेक्ट्रॉन हैव 4 इलेक्ट्रॉन. दिस ऑक्सीजन हैव 4 इलेक्ट्रॉन जो कि शेयर्ड में है. ये 4 इलेक्ट्रॉन अभी इस ऑक्सीजन के पास हैं. तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन और देने हैं. तो अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन और दिए जाएंगे. 2 और 2 4. नाउ 4 इलेक्ट्रॉन हो गए. हम वी आर लेफ्ट विद ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स. हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए जाना हमें. और इस ऑक्सीजन का भी अब हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है. देखिए जरा, वी लेफ्ट विद 6 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड ऑक्सीजन, इट हैज़ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए लोन पेयर में. 2 2 4 और 2 6. अब देखिए ज़रा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और हमने 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए. ये 6 इसको दे दिए. अब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा. अब देखिए क्या सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है. ऑक्सीजन का हमने कंप्लीट किया. जरा कार्बन का और देख लीजिए, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है. अब सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है. यू कैन चेक. 8 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस ऑक्सीजन, 8 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस ऑक्सीजन एंड 8 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस ऑक्सीजन एंड 8 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन. तो इस तरह से हमारी ये लेविस सिंबल्स बनते हैं. तो इस लेविस सिंबल की आपको प्रैक्टिस करनी है. कुछ मॉलिक्यूल्स के लेविस सिंबल मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये देखिए जरा, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स के
लेविस सिंबल्स हैं. दिस इज योर ऑक्सीजन, ओजोन सॉरी, दिस इज द लेविस सिंबल ऑफ ओजोन. कार्बोनेट, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, SO3, HNO3. जहाँ पर हमने ये आपको एरो दिखा रखा है, ध्यान रखना, दिस एरो मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन यहाँ हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मतलब नहीं, हमें लेविस सिंबल दिखाना है. डबल बॉन्ड मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, सिंगल बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड. NO3 नेगेटिव, HNO2, दिस इज योर HNO2, दिस इज NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, H2SO4, SO4 2 नेगेटिव. So these are the Lewis symbol of few molecules और ions. इनके आपको कॉपी में कंप्लीट बनाने हैं, और इससे अलग भी आप अपनी बुक से लेविस सिंबल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो दीज आर लेविस सिंबल्स. नाउ कम टू नेक्स्ट, फॉर्मल चार्ज. तो लेविस सिंबल आपको बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है इसकी खूब. इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट अपना पॉइंट ले रहे हैं, फॉर्मल चार्जेस. व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज इज डिफरेंस ऑफ number of valence electron on an atom in free state to the number of electrons assigned to that atom in a Lewis structure. Assuming that all the electrons in lone pair and half of electron in shared pair belongs to that atom. तो बेसिकली फॉर्मल चार्ज क्या है? इट इज द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन फ्री स्टेट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन टू दैट एटम इन लेविस स्ट्रक्चर. लेविस स्ट्रक्चर में उस एटम को कितने इलेक्ट्रॉन असाइन किए गए हैं, और फॉर फ्री स्टेट में उस एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका डिफरेंस, वो हमारा फॉर्मल चार्ज है. देखिए जरा फार्मूले के लिए क्या करेंगे हम. सो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी ध्यान रखना है, दिस इज नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन बट दिस इज अबाउट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड इन लेविस स्ट्रक्चर. बेसिकली आपका दिस इज द फॉर्मल चार्ज. अब किसी भी स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन पे, किसी भी एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये कैसे डिसाइड होगा? नाउ दिस वन इज डिसाइडेड बाय फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट माइनस. अब ये चीज़ हमें कैसे पता लगेगी? एक लेविस स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन उस एटम पे हैं, वो हमारे होते हैं हाफ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस ऑल द लोन इलेक्ट्रॉन. ये हमारे असाइंड स्ट्रक्चर में these are our electrons in the assigned structure, all the lone electrons and half of the shared electron. तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट माइनस
half of share electron minus all the lone electrons. So this is the formula for the formal charge. बड़ा सिंपल सा है और आपको एक सिंपल वे में आप लिख सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड बाई 2 माइनस योर लोन इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सॉरी, U मीन्स अनशेयर्ड, V मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अब देखिए, अब जैसा कि हमने एग्जाम्पल ऊपर कार्बोनेट लिया था, अब कार्बोनेट में ही कार्बन या 3 ऑक्सीजन पर मुझे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है. इसको मैं नीचे बना रहा हूँ इसी स्ट्रक्चर को, और उसके सभी एटम्स पे मैं फॉर्मल चार्ज निकालता हूँ. दिस इज कार्बन एंड दिस इज ऑक्सीजन विच मेक्स 2 बॉन्ड्स, सेकेंड ऑक्सीजन, third oxygen. This oxygen will have 6 electron, it will also have 6 electron, and this will have 4 electrons because 4 are in shared. Now this is my oxygen number 1, oxygen number 2, oxygen number 3, and I am going to calculate formal charge on oxygen number 1. हाँ जी, पहले तो in oxygen वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट इज ऑलवेज 6 माइनस हाफ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर आप देखेंगे तो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर्ड हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड. सो शेयर इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2 डिवाइड बाई 2 माइनस लॉन इलेक्ट्रॉन्स इसमें मेरे ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये और 2 ये, जो कि किसी भी बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है, अनशेयर्ड है, शेयरिंग नहीं कर रखी है इलेक्ट्रॉन्स की. सो 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो 6 minus 1 minus 6 means charge will be -1. So this carbon will have -1 charge. This oxygen will have -1 charge. Now formal charge on oxygen number 2, सेकेंड ऑक्सीजन हमारा ये है, दिस इज आवर सेकेंड ऑक्सीजन. तो इस पर मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना है. तो फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन 6 माइनस हाफ ऑफ द शेयर्ड फ्रीज में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 शेयर्ड डिवाइड बाई 2. ये देख लीजिए, ये आपके 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दीज 6 इलेक्ट्रॉन्स दीज आर अनशेयर्ड, जिसको मैं यहाँ चलो येलो में दिखा देता हूँ. ये जो येलो में है हमारे डबल शेडेड हो गए, जो ये अनशेयर्ड है, और जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन थे शेयर्ड थे. सो टू बी अगेन 6. सो दिस ऑक्सीजन विल आल्सो है -1 चार्ज. नाउ द थर्ड ऑक्सीजन नंबर 3. थर्ड ऑक्सीजन हैव 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो मैंने शेयरिंग दिए हैं. दीज आर shared, 6 in the free state and 4 shared and unshared electron yellow color ये. So unshared electron is also 4. So 6 minus 2 minus 4 means 0. Now this oxygen do not have any charge, कोई फॉर्मल चार्ज इस पर नहीं होगा. इसी तरह से अगर बात मैं करता हूँ कार्बन की, कार्बन have 4 electron in the free state. Carbon have 4 electron in the free state minus now shared electron. This carbon have 8 electron which are shared. 8 electron which are shared. So 8/2. और लॉन पेयर इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई है ही नहीं, तो टोटल हमारे हो जाएंगे 0. तो कार्बन पे भी कोई चार्ज नहीं है, 2 ऑक्सीजन पर है -1 चार्ज एंड 1 ऑक्सीजन डू नॉट हैव एनी चार्ज. तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होगा या ओवरऑल जो हमारा आयन होगा, इस पर टोटल 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है. CO3 2 नेगेटिव, एक नेगेटिव यहाँ इस ऑक्सीजन पे है, एक नेगेटिव इस ऑक्सीजन पे है. सो इट विल हैव 2 नेगेटिव चार्ज. तो इस तरह से हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं.
और कोई कंपाउंड ले लेते हैं, लेट वी आई एम टॉकिंग अबाउट SO4 2 नेगेटिव। तो पहले तो इसका लेवी सिंबल, अब लेवी सिंबल अगर हम बनाते हैं तो लेवी सिंबल विल बी, हाँ जी, आई रिक्वायर्ड 40 electrons, 8 electron for sulfur and 8 electron for each oxygen, so I will require 40 electrons, but I have 6 in the sulfur and 6 in oxygens and 2 due to negative charge. I have only 32 electrons, so shared electron will be 40 minus 32 means 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें शेड मुझे करने हैं। तो जब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, देखिए जरा, सल्फर, आई हैव 4 ऑक्सीजन, सो इट विल हैव 2 4 6 एंड 8 इलेक्ट्रॉन हो गए शेयर्ड। अब उसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना, और टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास 32 ही हैं। अब मुझे 32 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूट करना है। 8 में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ शेयर्ड में, अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वो हो जाएंगे मेरे 2 4 और 6, और 2 इसके शेड में है। ऑक्टेट कंप्लीट, 6 इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे, 6 6 12, ये हो गए, 12 8 20 डिस्ट्रीब्यूट मैं कर चुका हूँ। 12 इलेक्ट्रॉन और बचते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए 18, 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए 24, और 8 मैंने शेयर कर दिए, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट द formal charges on these oxygen atoms, oxygen and sulfur as well, so let us take the, अब इसमें ध्यान रखना, मैंने जो बॉन्ड दिखाया है सिंगल लाइन से 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो शेयर्ड हैं, और जो ग्रीन से मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं वो अनशेयर्ड हैं। आज फॉर्मल चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन एटम 6 इन द फ्री स्टेट, -2 in lone pair, -2 in shared pair and 6 in lone pair, so charge will be -1. On this oxygen atom again 6 -2/2 -6 in lone, -1 charge, so formal charge will be -1. On this oxygen atom 6 minus again 2/2 -6 -1, and on this oxygen atom also 6 minus 2/2 -6 again -1. Now sulfur has 6 minus 8 शेड पेयर है। चलो मैं इसको जरा नीचे दिखाता हूँ सल्फर के लिए, यहाँ से हटा देते हैं, कंजस्शन हो जाएगी। ऑन सल्फर फ्री स्टेट में 6 minus 8 शेयर है, ध्यान रखना, these are the shared electrons, 8 shared by sulfur divided by 2, and there is no lone pair of electrons, so it will have +2 charge. So sulfur have +2 charge and all the oxygens have -1, all the oxygen have -1 charge, so total charge will be -2, 4 negative 2 positive, so total charge will be -2. तो इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर दे दी जाती है, और किसी भी आइटम पे स्टार बनाकर आपको दे दिया जाएगा कि व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज निकालना बहुत ही आसान है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई शेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस फॉर्मल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट माइनस हाफ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम फॉर्मल चार्जेस कैलकुलेट करते हैं। और कई बार आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉर्मल चार्ज। सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉर्मल चार्ज इज दैट लोअर द फॉर्मल चार्ज मोर विल बी स्टेबिलिटी। तो बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है कि जितना फॉर्मल चार्ज कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। A molecular structure that gives the Lewis structure in which all the formal charges are 0. तो बेस तो ये इसमें lower the formal charge more will be stability of structure. स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। आप जो भी आप लेविस
स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो आपकी स्टेबल है, सही है या गलत है, तो वो फॉर्मल चार्ज पर डिपेंड करती है। जितना फॉर्मल चार्ज कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, उस स्ट्रक्चर के पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इस पर हम कई कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जैसे कि ए मोलिकुलर स्ट्रक्चर दैट गिव्स लेव स्ट्रक्चर इन विच ऑल द फॉर्मल चार्ज इज जीरो, इफ द स्ट्रक्चर हैव all the formal charges zero, that will be preferable one, will be preferable one, वो ज़्यादा प्रेफर की जाएगी एज कंपेयर टू द स्ट्रक्चर विच हैव फॉर्मल चार्ज। उस स्ट्रक्चर के मुकाबले जिसमें फॉर्मल चार्ज आ रहे हैं, जिसमें फॉर्मल चार्ज जीरो है, वो स्ट्रक्चर ज़्यादा प्रेफर की जाएगी, वही स्ट्रक्चर बेस्ट मानी जाती है, स्टेबल ज़्यादा होगी। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में जीरो फॉर्मल चार्ज नहीं आता तो जिसमें कम होगा वो स्टेबल मानी जाएगी। एंड इफ वी मस्ट चूज अमंग द सेवरल लाइव स्ट्रक्चर्स विद सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्मल चार्ज, द स्ट्रक्चर विद अ नेगेटिव फॉर्मल चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज प्रेफर्ड। तो ध्यान रखना, इफ all the structures have formal charge, हर एक स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज है, जीरो किसी पर भी नहीं है, देन स्ट्रक्चर विद लोअर फॉर्मल चार्ज विल बी प्रेफरेबल। और अगर इफ ऑल द स्ट्रक्चर्स हैव सेम फॉर्मल चार्ज, देन स्ट्रक्चर विद नेगेटिव फॉर्मल चार्ज ऑन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो ऑक्सीजन वगैरह है उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, विल बी प्रेफर्ड। अब इसमें एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ। अभी हमने SO4 की स्ट्रक्चर बनाई, सॉरी, अभी जो हमने SO4 की स्ट्रक्चर बनाई वो ये स्ट्रक्चर बनाई है, जिसमें मेरा हर एक ऑक्सीजन पर -1 चार्ज आता है, 6 इलेक्ट्रॉन ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, हर एक पर मेरा -1 और सल्फर पे +2 चार्ज आता है। इससे अलग SO4 की एक स्ट्रक्चर और भी दी जाती है, दैट इज दिस वन। ये देखिए जरा, जिस ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड है, वहाँ पर लोन पेयर में 4 ही रहेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन इन शेयर्ड, 4 इलेक्ट्रॉन इन शेयर्ड एंड 4 इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऐसे दूसरे ऑक्सीजन का 4 इलेक्ट्रॉन इन शेयर्ड एंड 4 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड, टोटल ऑक्टेट 8। इन दिस ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इन शेयर्ड एंड 6 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड। ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मैं येलो शेड में दिखा रहा हूँ, ये लीजिए। और इसी तरह से दिस ऑक्सीजन आल्सो हैव 2 इन शेयर्ड एंड 6 अनशेयर्ड। तो इसमें अगर हम फॉर्मल चार्जेस निकालते हैं तो दिस विल हैव -1 फॉर्मल चार्ज। कैसे? 6 - 2/2 -6,
-1 आएगा ना. इट विल हैव 0, these two which are attached with double bond will have 0 formal charge, like 6 minus 4/2 minus 4. So these will have 0 and these two oxygen will have -2. Sulfur will also have 0 formal charge. सल्फर का कैसे निकालेंगे देखिए जरा. 6 in the free state, whereas there are 8 in shared, 8/2, lone pair 0. Sorry, there are 12 in shared. सल्फर पे जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर्ड में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो सल्फर विल हैव 12 इन शेयर डिवाइड बाई 2, सो 0 चार्ज. तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों स्ट्रक्चर को अगर आप कंपेयर करते हैं तो फॉर्मल चार्ज जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 ऑक्सीजन एटम में आता है सेकंड स्ट्रक्चर में. सल्फर पे कोई चार्ज नहीं आता, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है. ओनली 2 ऑक्सीजन, दिस वन एंड दिस वन हैव -1 चार्ज. वेयर इन दिस स्ट्रक्चर ऑल द ऑक्सीजन हैव -1 एंड सल्फर हैव +2. हालांकि ओवरऑल जो चार्ज है इसमें भी -2 है, इसमें भी -2 है, लेकिन दिस स्ट्रक्चर है लेस फॉर्मल स्ट्रक्चर. तो बेसिकली आपको सल्फेट की स्ट्रक्चर ये दी जाती है. तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स को अगर कंपेयर करना है तो फॉर्मल चार्ज से कंपेयर किया जाता है. लेस द फॉर्मल चार्ज मोर प्रेफरेबल विल बी स्ट्रक्चर. तो इस तरह से हमारे आज हमने किया लेविस सिंबल एंड फॉर्मल चार्जेस. अब इसमें रेजोनेंस है, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी हमारी शुरू हो जाएगी, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. थैंक यू.